A very good evening. You're watching 7 at 7, the only news bulletin where we curate the day's top 7 stories for our viewers. Our top story comes from the state of Uttar Pradesh in dramatic developments that took place this morning of the encounter of gangster Vikas Dubey. The Uttar Pradesh Special Task Force team, which was in charge with bringing Vikas Dubey back to Kanpur after he was arrested in MP's Ujjain. India Today followed the convoy back from Ujjain to quarters on ground. Both, strangely, were stopped at certain points. One of them stopped just 20 minutes before the alleged encounter took place. Just 20 minutes, told that he cannot move forward. It was like the stops which happens when VIP convoys move. 20 minutes. In 20 minutes, he reaches the spot and he sees the STF car overturned. Here's what transpired. July 9th, Thursday, 7 p.m. UP STF convoy takes Dubey into custody and leaves for Kanpur. India Today's team follows the 4-vehicle convoy of the Special Task Force. Sitting in one of these vehicles, gangster Vikas Dubey looks relaxed, thinking that by surrendering himself, he's saved his own life. The convoy had to travel a distance of 300 kilometers, but due to bad roads, it would take them 10 hours. At 9:30 p.m., the convoy stopped to refuel vehicles between Shahjahanpur and Pachor. India Today's Ravishpal Singh and his cameraman also stopped their car to catch a glimpse of gangster Dubey. But an angered Special Task Force team stops them from filming. 10 kilometers ahead of Pachor near a dhaba, one Innova vehicle from the convoy overtakes India Today's car in a manner that we had to stop. STF officers take the key of India Today's vehicle. They jostle India Today's cameraman Irshad and are angry that we're following their convoy. Despite repeated requests, the Special Task Force team doesn't return our car keys and then moves on. जो ड्राइवर है उसके साथ पहले झुमा झटकी की, उससे कार की चाबी छीनी, फेंकी और उसके बाद जो हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं उन्होंने चाबी को उठा करके अपने पास रखने की कोशिश की, तो उन्हें धक्का दे करके यहीं ये जो ढाबे के जो पलंग है जहां पे बैठ के सब खाना खाते हैं यहीं पे गिरा दिया और उनसे कार की चाबी छीनकर वो आगे फरार हो गए. India Today's Ravishpal Singh then called a senior police official and asked for their intervention. The STF team returns the keys to another reporter of India Today, some 61 kilometers away from the site where Ravishpal was stranded. The STF also warned not to follow their convoy. India Today's team was present at every crucial point on the Ujjain-Kanpur highway to report on Vikas Dubey. Until this point, everything was going smooth. ये आप देख पा रहे हैं जो ये विकास दुबे है उसको लेकर कानपुर पुलिस की टीम, ये आप देख पा रहे हैं इसमें इसी कार में जो विकास दुबे है वो बैठा हुआ है, यूपी एसटीएफ की टीम बैठी हुई है. Around 6:30 a.m., the STF convoy reaches the Kanpur toll plaza. India Today's Arvind Ojha starts following the convoy. At the toll plaza, 2 more vehicles join Dubey's convoy. One at the front, another at the back. The sole purpose of this was to stop media vehicles from entering the convoy. हमारी गाड़ी को ओवरटेक करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है. जाहिर तौर पर एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, ऐसा सोर्स बता रहे हैं. Undeterred, India Today's Arvind Ojha continues to follow the convoy, even though the police try to dangerously overtake our vehicle. Near the Kanpur toll plaza, an effort was made again to stop India Today's vehicle, but somehow we managed to avoid it. Just a few kilometers ahead, there was barricading. We were stopped in the name of checking. The time was 6:55 a.m. तो मीडिया कर्मियों को क्यों रोक दिया गया? नहीं रोका नहीं है, सबको निकलवा रहा है. चेक नहीं आपने जानबूझ कर रोका है. किसी को नहीं रोका गया. आपने जानबूझ कर After 10 minutes of arguments,
our vehicle was allowed to pass the barricading and we again started following Vikas Dubey's convoy. India Today's Arvind Ojha noticed that one vehicle from the convoy had turned turtle. The police informed us that an accident had happened. We got to know that Vikas Dubey was inside the vehicle and that he allegedly snatched a policeman's weapon and was killed while trying to flee. ये वो गाड़ी थी जिसमें बकायदा जो एसटीएफ के लोग थे वो सवार थे और ये गाड़ी जो है पूरी तरह से पलट गई है. For 15 minutes, we were not able to follow the convoy in Kanpur because the police stopped us at the barricades, and in those 15 minutes, Vikas Dubey was encountered. With Ravish Pal Singh, Pankaj Sharma in Ujjain, Himanshu Mishra and Arvind Ojha in Kanpur, Bureau Report, India Today. My colleagues Ravish Pal Singh and Arvind Ojha are joining us live right now for the very latest. Both of them tracked the convoy of Dubey, where he was being taken from Ujjain all the way to Kanpur. What's really interesting is how things transpired, because my colleague Arvind Ojha, who would be joining us in just about a minute from now, was stopped 20 minutes before. 20 minutes before the encounter takes place. He was stopped, he was told he cannot go ahead. After 20 minutes, when he goes, he reaches the spot and he sees the car overturned. Ravish is also with us. Ravish's car was stopped. The STF, the Special Task Force of Uttar Pradesh Police, actually took away the keys of his car, refusing the car to go any further. Ravish, can you just detail for us on what transpired with you through the course of you chasing the convoy carrying Vikas Dubey? बिल्कुल प्रीति, आपको बताएं कि जब हम लोगों ने चेस करना शुरू किया था उन्हें, तो उस दौरान कहीं से भी देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। हालांकि उन्होंने काफ़ी कोशिश पहले ही की थी। उज्जैन से जब वो टीम लेकर के निकली थी विकास दुबे को, जिसमें एमपी पुलिस और या साथ ही में यूपी एसटीएफ, ये दोनों की एक ज्वाइंट टीम थी जो उज्जैन से निकली थी। उसके बाद जब ये निकले तो उज्जैन में किसी को भनक भी नहीं लगने दी गई कि ये कहाँ निकले हैं, कैसे निकले हैं और कब निकले हैं। हालांकि जैसे तैसे हम लोगों ने इन्हें ट्रेस किया नेशनल हाईवे नंबर 3 पे शाजापुर के पास, जो कि उज्जैन से अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स दूर है। वहां पे जब हम इनकी गाड़ी को चेस करना शुरू किया तो शुरुआत में चेस करते समय कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जब ये पेट्रोल पंप पे एक जगह रुके डीजल भरवाने के लिए, और जब हमने कोशिश की कि गाड़ी से उतर करके, अपनी कार से उतर के कम से कम विकास दुबे की एक झलक जो है वो अपने कैमरे में कैद कर सके, दिखा सके दर्शकों को कि आखिरकार किस स्थिति में उसे अब लेकर के जाया जा रहा है, तो वहां पे पहले तो उन्होंने, जो हमारे कैमरा पर्सन है, उन्हें धक्का दिया, कार के अंदर जबरदस्ती बैठाया गया, फोर्सफुली उन्हें बैठाया गया और फिर वहां से हमें रवाना किया गया। इसी के साथ थ्रेट किया गया कि आपको हमें फॉलो नहीं करना है। लेकिन इसके बाद भी हमने उनके आगे गाड़ी को रखा और उसके बाद जो अगला टोल प्लाजा था वहां पे जाके अपनी कार को खड़ा कर लिया। लेकिन उसके बाद जब उस टोल प्लाजा को उन्होंने पार किया, उसके बाद उन्हें पता नहीं क्यों, किस बात से आपत्ति हुई, क्या उनका इश्यू था, लेकिन वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने गाड़ी को एकदम ऐसे जिस तरीके से, उससे हादसा भी हो सकता था क्योंकि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी को साइड में लगवाया। ना केवल ड्राइवर को उन्होंने थ्रेश किया, उससे कार की जो चाबियां वो छीनी, बल्कि उसके बाद जब जो हमारे कैमरा पर्सन है इरशाद खान, उन्होंने कोशिश की कि कार की चाबी कम से कम, क्योंकि वो जगह तो जो थी जहां पे उन्होंने हमें रोका था वो बिल्कुल आइसोलेटेड जगह थी, हाईवे पे, नेशनल हाईवे नंबर 3 पे एक आइसोलेटेड जगह थी। वो पचोड़ से भी, जो अगला टाउन था, उससे भी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी और ऐसी अंधेरी रात में वहां पे कई तरह की समस्या आ सकती थी। इसलिए जब हमने कोशिश की वो चाबी, जब हमारे कैमरा पर्सन इरशाद खान ने लेने की उनसे, तो उन्हें ना केवल पंच किया कैमरा पर्सन को, उन्हें नीचे गिरा दिया, उन्हें किक किया और उसके बाद वो चाबी लेकर के वहां से चले गए। हमने काफी कोशिश की, रिक्वेस्ट की कि वो चाबी दे, उन्होंने नहीं दी। फिर अगले टोल प्लाजा पे जो तकरीबन 61 किलोमीटर दूर था वहां से, वहां पे उन्होंने ये चाबियां दी। तब कहीं जाकर के हम जो है उस चाबी को अपने पास तक ला पाया, वहां से फिर हम वापस उज्जैन आए। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब का एक अगर हम देखें तो जो जिस्ट है वो यही लग रहा है प्रीति कि ये नहीं चाहते थे पुलिसकर्मी की जो मीडिया के कैमरे हैं वो जो गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं वो कैद कर सके, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज थी पुलिस की उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि जितना माना जा रहा है कि विकास दुबे जो है उसने सरेंडर कर दिया है तो अब वो सेफ है, सुरक्षित है, घर पहुंच जाएगा या कोर्ट पहुंच जाएगा जहां उसे लेके जाना है कानपुर, ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली उसका एनकाउंटर आज सुबह हो ही गया और पुलिसकर्मियों की बॉडी लैंग्वेज देख के लग भी यही रहा था कि वो इतनी आसानी से विकास दुबे को छोड़ने वाले हैं नहीं, और शायद यही वजह है
कि ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जब करस्पॉन्डेंट अरविंद ओझा ने उस गाड़ी को ट्रेस किया तो उन्होंने उसे भी रोक दिया और आखिरकार वो जो आखिरी के 15-20 मिनट थे जहां पे मीडिया उनके आसपास नहीं थी, उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम होता है जहां पे बाद में विकास दुबे के रवीश मुझसे मैं आपसे एक सवाल और करूंगी क्योंकि अरविंद ओझा बस अभी हमसे जुड़ने ही वाले हैं। एक सवाल और करूंगी रवीश, आप अगर टाइमलाइन दें, वक्त की टाइमलाइन दें, कितने बजे आपका जो गाड़ी की चाबी है एसटीएफ ने निकाली, कितने बजे ये हादसा इनकाउंटर हुआ, आप कितनी दूर थे साइट से? देखिए मैं आपको बताऊं कि जब हम वहां से निकले तो जो उज्जैन से बताया जा रहा है कि 7 से 7:30 यानी 7 to 7:30 PM जो कारकेट था 4 गाड़ियों का, जिसमें एमपी पुलिस और यूपी एसटीएफ दोनों की ज्वाइंट टीम जो है उन गाड़ियों में थी, वो 7 से 7:30 बजे के बीच उज्जैन से निकले। उसके बाद करीब 9:30 9:30 के आसपास रात के इंडिया टुडे की टीम जो है वो ट्रेस करती है इन्हें नेशनल हाईवे नंबर 3 पे और वहीं से हमारी चेस जो है वो हम शुरू करते हैं। इनको कई किलोमीटर तक हम इन्हें लगातार फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो कहीं से भी इनकी ड्यूटी में बाधा बनने का नहीं था और इसीलिए हमने अपनी गाड़ी को इनसे दूर ही रखा था और कैमरा को जूम करके हम जो है वो फिल्म बना रहे थे, इनकी शूट कर रहे थे ताकि हम देख सके गाड़ियों का मूवमेंट क्या है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सब किया। 10:30 बजे का वो समय रहा होगा प्रीति, जब जो यूपी एसटीएफ और एमपी पुलिस की जो ज्वाइंट टीम है उन्होंने हमें रोका। 10:30 बजे के करीब एक गांव पड़ता है नेशनल हाईवे 3 पे, पचोर से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले वहां पर एक ढाबा है, उसके पास उन्होंने हमारी टीम को रोका और वहीं पे 10:30 बजे के करीब उन्होंने हमारी कार की चाबी कार से फोर्सफुली निकाली और उसे लेकर के वो अपने साथ चले गए। और यहां से जब वो 60 किलोमीटर दूर पहुंचे, जब उन्होंने चाबी दी तो रात को तकरीबन आप समझिए कि 2 बजे के करीब हमारी कार की चाबी हमें वापस मिल पाई, जब करस्पॉन्डेंट जो है हमारे वो गुना के पास जो टोल प्लाजा जहां पे वो चाबियां उन्हें फेंक के दी गई थी वो उसे लेकर के जब तक हमारे पास पहुंचे तब तक हम वहीं पे ढाबे पे ही स्टैंडर्ड रहे जब तक चाबी हमारे पास आ नहीं गई और उसके बाद ही हम वापस उज्जैन आ पाए। एकदम अगर आज सुबह की बात करें फ्राइडे मॉर्निंग हम जो है उज्जैन पहुंच पाए इसकी वजह से। रवीश मेरे साथ बने रहिए। आई एम गोइंग टू ब्रिंग इन अरविंद ओझा। वी बीन ट्राइंग टू गेट हिम लाइव बट ही इज फाइनली बीन एबल टू कम ऑन द फोन लाइन। अरविंद, आप कितने बजे आपको रोका गया, कितने मिनट के बाद ये एनकाउंटर हुआ, आप सबसे पहले पहुंचे मौका वारदात पर, आपने क्या देखा और आपको क्यों रोका गया, क्या बोला गया? प्रीति मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूँ। सबसे पहले 6:31 पर जो एसटीएफ है वो उज्जैन से कानपुर में एंट्री करती है विकास दुबे को लेकर और उसके साथ ही इंडिया टुडे की टीम लगातार उस कॉन्वॉय को ट्रैक कर रही थी। हम ये जानना चाहते थे कि आखिर किस लोकेशन पर लेकर जाया जा रहा है। आगे तो जो टोल था पहले वहां पर रोका गया, हमने वहां से किसी तरह से निकलकर हम आगे बढ़ने लगे। उसके बाद काफी स्पीड में जो एसटीएफ की गाड़ियां थी वो काफी स्पीड में थी, तो हमारी भी गाड़ी काफी स्पीड में थी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि जब उस स्पीड में हमारे गाड़ी के आगे कम से कम 4 बार आगे एकदम ले जाकर गाड़ी खड़ी करने की कोशिश की, गाड़ी का डिसबैलेंस बिगड़ा। हमें लगा कि शायद कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन फिर आगे जाकर बाकायदा हमारी गाड़ी रोकी गई और सारी प्राइवेट गाड़ियों को रोका गया चेकिंग के नाम पर और जाम लगा दिया गया और उसके ठीक 10 मिनट बाद ये एनकाउंटर हो जाता है और हम किसी तरह से जब दूसरा वाला जो जाम है उसको खुलवाकर आगे जाने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं गाड़ी पलटी हुई है और एसटीएफ की 2 गाड़ियां और खड़ी थी, 2-3 पुलिसकर्मी खड़े थे। वहां पर हमें ये बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कुछ मिनटों बाद कानपुर पुलिस ने ये कंफर्म किया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद विकास दुबे वेपन्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन जिस तरीका का डेस्परेशन था, आप चाहे रवीश को देख ले और इंडिया टुडे की पूरी टीम, चाहे जालौन की बात कर ले, उस रूट से झांसी रूट की, हम सभी के संपर्क में, सारे स्ट्रिंगर के संपर्क में थे। सभी ये कह रहे थे कि जहां से भी वो कॉन्वॉय गुजर रहा था उसके आगे किसी मीडिया कर्मी को जाने नहीं दिया जा रहा था। ये इतना बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों था कि एसटीएफ की टीम, यूपी पुलिस की टीम मीडिया कवरेज से बच रही थी और क्यों मीडिया कवरेज से बच रही थी, उसका नतीजा ये देखने को मिला कि जब आखिरी
टाइम पर हमारी गाड़ी को रोका गया, उससे 10 मिनट बाद इनकाउंटर हो गया, जिसमें जो विकास दुबे है वो मारा गया। इसलिए इस इनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रीति, अरविंद, खबर अभी ये भी आ रही है कि दैट द बॉडी ऑफ विकास दुबे हैज बीन टेकन डायरेक्टली फॉर क्रिमेशन आफ्टर द पोस्टमार्टम। व्हाट कैन यू ऐड टू दैट? जी देखिए, कुछ उसके फॉलोअर भी है, लेकिन जो पुलिस है वो एहतियात बरत रही है कि किसी तरीके का कोई वायलेंस, कोई बवाल ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो सामने ना खड़ी हो जाए। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरीके से गोली मारी गई है, जो एक एसओपी होता है या जो भी एक कानून में प्रावधान है कि अगर कोई शख्स भागता है तो सबसे पहले पैर में गोली मारी जाती है, लेकिन यहाँ विकास दुबे के सीने में भी गोली मारी गई है। और ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर विकास ये दुबे को कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाती तो कई बड़े पुलिस अफसरों के कई पॉलिटिशियन है वो एक्सपोज हो जाते, क्योंकि एक जो गुंडा वो किस तरीके से एक थाने में एक मंत्री का मर्डर कर देता है और फिर इस तरह से कानपुर जैसे एक बड़े शहर में उत्तर प्रदेश में उसका रसूख बोलने लगता है कि वो एक दिन उसी सिस्टम में 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मार देता है। तो ये जो सारे सवाल है, ये इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से अब लगता नहीं है कि इसमें कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, कोई खुलासा होने वाला। हालांकि जो यूपी पुलिस है वो क्लेम कर रही है कि 200 जो पुलिसकर्मी है वो रडार पर है, लेकिन फिलहाल ये है कि आज बहुत ड्रामेटिक वे में विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारा गया है। जी, बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा। Ravish, thank you for joining us. Thank you for coming live there. We're going to keep coming back to both of you for more updates there. As usual, on 7 at 7, we end by busting certain claims, certain myths which are masquerading to be facts. You must have seen them as WhatsApp forwards on social media. Let me take you through some of those. Well, there is a claim that's floating about which seems to suggest bodies of COVID patients dumped in the Ganga in Patna to hide actual number of deaths. The fact check on that: the bodies thrown into the river on July 7th, but details of deceased not known yet. So half-truth. There could, in fact, be some truth there. There is a claim which is now on which suggests that AMU alumni Khushbu Mirza promoted as director of ISRO. The fact check on that: Khushbu Mirza is a senior scientist at ISRO, not director. False. With that, it's a wrap on 7 at 7. We are going to get you all the latest, all the developments coming in on the story emanating from Kanpur of the encounter of Vikas Dubey. Stay with us. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.